Assalamu alaikum students. How are you all? Last class में we studied about the internal structure, opening and closing, and discussed the fate of glucose which is synthesized during photosynthesis. What happens to that glucose? Right? वो हमने discuss किया था. आज जो है वो हम minerals discuss करेंगे in plants. There are two minerals which are in the syllabus. एक nitrate है और दूसरा magnesium है. राइट अच्छा पहले हम देखते हैं कि व्हाट व्हाई इज नाइट्रेट रिक्वायर्ड प्लांट जो है अच्छा प्लांट को नाइट्रेट्स की जरूरत पड़ती है फॉर मेकिंग अमाइनो एसिड्स राइट ये जो नाइट्रेट्स हैं these nitrates they will combine with amino acids ठीक है प्लस amino acids और amino acids sorry they will actually combine with glucose ओके ग्लूकोज के साथ मिलके ये क्या बनाएंगे दे विल मेक अमाइनो एसिड्स एंड दीज अमाइनो एसिड्स विल देन मेक प्रोटीन्स राइट तो अगर नाइट्रेट्स जो है दे आर डेफिशिएंट अगेन आप देखिए कि इसमें देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन और प्रोटीन हमें पता है दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रोटोप्लाज्म और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ protoplasm made up of protein. If there will be deficiency of the nitrate, no amino acids will be formed, no proteins will be formed, so there will be no growth in plants if there will be deficiency of the nitrates. एक तो ये इस काम के लिए हमें चाहिए अच्छा दूसरा जो है नाइट्रेट्स आप देखिए नाइट्रेट्स दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है इट एंटर्स इनटू द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स and then plants can use the nitrogen from the nitrates for making amino acids proteins other than this it is also used for making DNA RNA because they also contain nitrogen and along with this chlorophyll जो है that is an organic molecule और chlorophyll में भी आपको प्रोटीन नाइट्रेट्स की जरूरत पड़ती है along with magnesium क्या होता है there are nitrates nitrogen required and this nitrogen comes from the nitrate indirectly अगर ये हमें ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो we can also relate it in this way to the function of the nitrates indirectly हमें फिर ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा otherwise this is sufficient for your syllabus. Okay, second nitrate which is in the syllabus that is magnesium and magnesium is required for the synthesis of chlorophyll and we studied in previous class कि जो chlorophyll है chlorophyll converts solar energy into chemical energy और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं it is required for photosynthesis राइट अगर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे as we are the students of O3 तो उसमें we need more details. So magnesium is required for making the chlorophyll. If there is deficiency of magnesium, there will be no chlorophyll, right? और अगर chlorophyll नहीं होगा तो plants will not capture sunlight and they will not carry out photosynthesis. अच्छा अब अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन आता है तो how we are going to attempt ये बात तो हमने बता दी that magnesium is required for making chlorophyll. Right, if there is deficiency of magnesium, so there will be no chlorophyll. Okay, if there will be no chlorophyll, no sunlight will be, no solar energy will be converted into chemical energy, and no photosynthesis will take place. Okay, अब हमने इस further expand कैसे करना है for more marks. If there will be no photosynthesis, right? Then no glucose will be formed. अब अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो देन जो ग्लूकोज के फंक्शंस हैं दे विल नॉट बी परफॉर्म्ड इनटू द सेल तो हमने इसको ज्यादा मार्क्स के लिए 5 मार्क्स तो हमने इसको
देन रिलेट करना है विद द फंक्शंस ऑफ द ग्लूकोज, और फिर ईच फंक्शन विल कीप ऑन गिविंग अस 1 मार्क। ठीक है, तो इससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज yes, let's discuss the experiments। अच्छा, these are related to पेपर 6, इसमें जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, और इसी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर 1 में भी आते हैं, we have to पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं। सो वी हैव टू सी के कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं। इट्स बेटर कि जितने भी इन एक्सपेरिमेंट्स में केमिकल्स यूज होंगे हम उनको एक ही स्लाइड पर डिस्कस कर लेंगे या स्टार्टिंग में हम लिख लेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं स्टार्च टेस्ट, राइट, देन एक्सपेरिमेंट्स अदर आर to find out the limiting factors for photosynthesis, right? हमने पढ़ लिया है कि sunlight can be the limiting factor, carbon dioxide can be the limiting factor, and chlorophyll can be the limiting factor. So we are going to design these experiments. अच्छा, third experiment जो है that is to find out which gas is given off during photosynthesis, right? We discussed the equation, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है गैस, ऑक्सीजन गैस इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका भी हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, नेसेसिटी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस में भी अगेन हम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल को देखेंगे, राइट? अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हुए बेटा हमें देखना होता है कि हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं, राइट? वी हैव 2 फैक्टर्स। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, okay? One is the experimental group and other is the control group. Always remember कि control group जो है it is taken for comparison। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स को हमने देखना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए हम कंपैरिजन, उसके साथ कंपैरिजन के लिए वी नीड एन अदर सेटअप, और उस सेटअप को हम कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल सेटअप बोलते हैं। एंड कंट्रोल सेटअप में हम ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस के केस में वी विल ऐड ऑल द वेरिएबल्स। अब आप देखिए कि अगर हम फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन प्लांट्स में, एंड वी नो कि प्लांट्स को जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज रिक्वायर्ड अलोंग विद क्लोरोफिल, ठीक है, ये चीजें चाहिए होती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। और हम अगर जो है नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना चाहते हैं, whether carbon dioxide is important for photosynthesis or not, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे into control group. So it means it will have all the variables along with carbon dioxide. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम omit करेंगे, so it will not have that particular or that one variable which we are going to find out or which we are going to study. Control group will have all the variables. एक चीज अच्छा, और purpose of control group is that it is taken for comparison with the experimental group. This is sometimes mostly asked in paper 6, what is the purpose of control group? So it is for the comparison. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए बेटा, as we have written कि it contains all the variables. Okay, it contains all the variables, और ये all the variables जो है it is true for photosynthesis. Photosynthesis में control group will have all the variables, but अगर हम ये experiments करते हैं for enzymes, तो enzymes के केस में experimental and control group will be reversed. Experimental group will have all the variables. All means कि if we are going to find out the activity of some enzyme, तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो एंजाइम ऐड करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप में वी विल ओमिट दैट वेरिएबल। एंजाइम हम कंट्रोल ग्रुप में ओमिट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उसको ऐड करेंगे। तो दिस इज ऑपोजिट इन केस ऑफ एंजाइम्स। तो आपने देखना है कि हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन डिजाइन कर रहे हैं,
राइट। और उसमें फिर आपने देखना है कि हमें वेरिएबल्स ऐड करने हैं या हमें ओमिट करने हैं, वेदर इट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और एंजाइम्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें कुछ केमिकल्स हैं। दिस इज ग्लोइंग स्प्लिंटर इज नॉट द केमिकल। ठीक है, ओवरऑल इसमें जो हम यूज करते हैं फर्स्ट इज द आयोडीन। और आयोडीन हम क्यों यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड टू टेस्ट, दिस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्च। ओके। अच्छा, अब आयोडीन जो है, आयोडीन इज ऑफ ब्राउन, ब्राउन कलर, एंड विद आयोडीन it turns blue black, and this is tested for starch। अगर स्टार्च जो है प्रेजेंट होगा, आयोडीन विल टर्न फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, दिस इज द इंडिकेशन दैट स्टार्च इज प्रेजेंट। अच्छा, इनमें यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इन विच वी विल यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम, which is the combination of sodium hydroxide and calcium hydroxide। अब ये जो तीन केमिकल्स हैं, ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और इन तीनों केमिकल्स का जो पर्पस है, ऑल दीज थ्री दे एब्जॉर्ब, राइट, दे ऑल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। All these three will absorb carbon dioxide. So when we will have to omit carbon dioxide from the experimental setup, तो हम इन तीनों में से कोई भी केमिकल विच इज अवेलेबल इनटू और लेबोरेटरी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, समटाइम्स हम देखेंगे दे वुड हैव एडेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड at one place and sodium hydroxide at another place in the same experiment। ठीक है, तो इन दोनों का पर्पस जो है, दे बोथ विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हम सेम केमिकल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज द glowing splinter, and glowing splinter actually this is used to test the oxygen gas, and it glows brighter in the presence of oxygen। अच्छा, नेक्स्ट जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स पे आप यूज कर सकते हैं, और आप कार्बोनेट्स के सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या हम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, हम ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हमें फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी होती है, सो बाइकार्बोनेट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो है लाइम वाटर इज आल्सो यूज्ड, या दिस इज यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, और लाइम वाटर जो है, इट टर्न्स टर्न्स मिल्की विद कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं, या हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते वक्त इनको यूज करेंगे, एंड आई डिस्कस देयर पर्पस इन द स्टार्ट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम वैक्स भी यूज करेंगे, ऑयल भी यूज करेंगे, या पॉलीथीन बैग भी यूज करेंगे, राइट। तो इनका पर्पस है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, जहां पर भी हम वैक्स, ऑयल, पॉलीथीन बैग यूज करते हैं to prevent water loss। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज टू टेस्ट द स्टार्च। हाउ विल वी टेस्ट स्टार्च? इसमें आप देखें, फॉर टेस्टिंग स्टार्च वी विल टेक अ लीफ को हम क्या करेंगे, प्लक ऑफ करेंगे। अच्छा, इस प्लक ऑफ करने से पहले वी विल डी स्टार्च द प्लांट। De-starch plant means that we will keep the plant into dark for 2 to 3 nights।
What will happen then? अच्छा, then we will place it into the dark for 2 to 3 nights. तो उसके अंदर जो present starch होगा, that will be used by the plant. Okay, वो उसको use कर लेगा. अब हमने plant को क्या करना है? We will place the plant into sunlight ताकि वो photosynthesis करे. Next to 12 hours के लिए रख दें, 6 to 8 hours के लिए. After that we will pluck a leaf and we will test the presence of starch into that leaf. जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट विल मेक glucose. That glucose will be used by the plant and extra will be converted into starch जो स्टोर हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या ये हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलेगा. तो अब हमने क्या करना है? स्टार्च टेस्ट करना है. ठीक है, डिस्टार्च करने के बाद हम प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रखेंगे एंड देन वी विल प्लक इट्स लीफ. लीफ को हम बॉईल करेंगे इनटू वाटर. What is the purpose of boiling leaves into water? Yes, Hashir, you have joined the class. If you would like to answer, हम boiling water में leaf को क्यों place करेंगे? Boiling water means very 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 high temperature, right? हाई टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज denatured एंड इट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन परमिएबल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे या डिफरेंट केमिकल्स. आयोडीन जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे तो बॉइलिंग विल. ओके, यस सिमाब, व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ adding this? You can text. Purpose of boiling into water is that it will make the cell membrane permeable. ओके अच्छा, वाटर से हम बॉइलिंग लीफ को निकालेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे इनटू एथेनॉल. अच्छा, यहाँ पर जो है फॉर P6 सेफ्टी मेजर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट. हमने सेफ्टी मेजर मेंशन करनी होती है लाजमी. इन द एंड वी विल डिस्कस 4-5 सेफ्टी मेजर्स. और जब सेफ्टी मेजर्स पेपर 6 में पूछे होते हैं तो देन इट मीन्स के उसके मार्क्स हैं, तो वी हैव टू राइट द सेफ्टी मेजर्स. अच्छा, एज वी नो कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल इज कंबस्टिबल, इट कैन कैच फायर. तो हम कभी भी लीफ को एथेनॉल में डायरेक्टली बॉयल नहीं करेंगे. वी विल यूज वाटर बाथ. एक चीज, वाटर बाथ जब हम यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी द सेफ्टी मेजर. सेकेंड, आप देखें कि फ्लेम है तो हम फ्लेम को वी विल पुट ऑफ द फ्लेम. ठीक है, अगेन द रीजन इज कि एथेनॉल जो है दिस इज कंबस्टिबल, तो पुटिंग ऑफ द फ्लेम ये भी हमारा सेफ्टी मेजर हो जाएगा. 2 सेफ्टी मेजर्स. अच्छा, इसके अलावा हम थर्ड देख लेते हैं कि व्हाइल वी आर डीलिंग विद द ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स में सेफ्टी मेजर क्या हो सकता है? व्हाइल वी आर डीलिंग विद द हीटिंग, तो उसमें फ्लेम है, वी कैन वेयर गोगल्स, राइट. तो ये हमारे कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम क्या करते हैं, हमें सेफ्टी मेजर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. एथेनॉल में हमने इसको बॉईल किया है. एथेनॉल में हम इसको जब बॉईल करेंगे तो कलर ऑफ द एथेनॉल विल बिकम ग्रीन. यस, कैन यू टेल मी बेटा व्हाई इट विल बिकम ग्रीन? सिमाब, it will become green because chlorophyll will dissolve into ethanol. अच्छा, अब क्लोरोफिल जो है वो वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं हुआ? व्हाई वी हैव यूज्ड एथेनॉल? बिकॉज क्लोरोफिल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज डिजोल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. एथेनॉल इज ऑर्गेनिक, इट विल डिजोल्व एथेनॉल. ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे कलर ऑफ एथेनॉल विल बी ग्रीन, इट विल हैव क्लोरोफिल इनटू इट. अब हम क्या करेंगे? अगेन वी विल टेक दिस लीफ और इसको हम दोबारा हीट करेंगे इनटू वाटर. हीट करेंगे, राइट. और दोबारा हीट करने का पर्पस क्या है? जब हम इसको दोबारा हीट करेंगे तो इट विल अगेन बिकम सॉफ्ट एंड ब्रिटल एंड इट विल फर्दर मेक द आई मेम्ब्रेन
or it will become permeable to iodine. Iodine will move inside, तो तब वो स्टार्च प्रेजेंट, जो स्टार्च प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव अस कलर. ओके, दिस इज द वे हाउ वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. सेफ्टी मेजर्स भी हमने इसमें लिखने हैं और हमें रीजंस भी लिखने हैं व्हाई वी हैव यूज्ड बॉइलिंग वाटर, एथेनॉल एंड व्हाई वी आर प्लेसिंग इट इनटू वाटर अगेन. अच्छा, इन द एंड हम लीफ को place करेंगे into on petri dish and then we will add starch, and if the color of the starch will turn from brown to blue black, it means that it contains or it has synthesized. Starch will turn from brown to blue black, right? It will turn from brown to blue black. दिस इज द स्टार्च टेस्ट. अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें इन द एंड हमें क्या करना है, ये स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करना है. एंड वी हैव डिस्कस्ड स्टार्च टेस्ट हमने किस तरह परफॉर्म किया है. बाकी एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इसी तरह ही परफॉर्म करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं. अच्छा, इस केस में बेटा वी विल नॉट यूज एनी कंट्रोल. ठीक है, इस केस में हम कंट्रोल में यूज करेंगे और बाकी में जो है हम कंट्रोल यूज करेंगे. अच्छा, आप ये देखें, दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. एज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सनलाइट जो है इट विल बी एब्सेंट एंड इन कंट्रोल ग्रुप सनलाइट विल बी प्रेजेंट, राइट. अच्छा, इस केस में हमने क्या करना है, अगेन वी विल टेक अ प्लांट, उसको हम डिस्टार्च करेंगे बाय प्लेसिंग इट इनटू द डार्क, और डिस्टार्च करने के बाद अगेन वी विल प्लेस इट इनटू द सनलाइट सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अगर ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है. अच्छा, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो हम डिस्टार्च करने के बाद प्लांट को लेंगे और प्लांट को हम प्लेस करेंगे इनटू अ सेटअप. अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखें, आप प्लांट लेंगे डिस्चार्ज करने के बाद और प्लांट के एक लीफ को, यहाँ पर हमने लीफ को प्लक नहीं करना, लीफ विल बी विद द स्टेम, और हम पॉटेड प्लांट भी ले सकते हैं इस केस में. व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, हम इस पे कार्बन ब्लैक पेपर की स्ट्रिप्स कट करेंगे ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज. उन स्ट्रिप्स को हम ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ प्लेस करेंगे. What will be the purpose of these black strips? These black strips are impervious to light or they will cut down the supply of light to the plant. अब आप देखें कि लाइट और सनलाइट हमने ओमिट कर दिया बाय यूजिंग दिस ब्लैक पेपर, राइट. तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी हो गया. ओके, अच्छा, पर्पस हमने बता दिया है. अब हम क्या करेंगे, हम सेम वे में इस प्लांट को, अच्छा, इसी के ऊपर ही द एरिया विच इज ग्रीन एंड विच इज प्रोवाइडेड विद द सनलाइट, हम इस एरिया को भी एज अ कंट्रोल यूज कर सकते हैं. बट हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हुए हम एक कंट्रोल ग्रुप लाजमी लेते हैं फॉर कंपैरिजन. अच्छा, कंट्रोल ग्रुप में हमने क्या करना है, ब्लैक पेपर से आप बेशक उसको कवर ना करें, ठीक है, वो भी ठीक है. अगर आप ब्लैक की जगह यू कैन यूज द ट्रांसपेरेंट पेपर्स. ट्रांसपेरेंट विल अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू इट. इसका मतलब है कि हमारे कंट्रोल ग्रुप में देयर विल बी सनलाइट प्रेजेंट, हम सनलाइट को ओमिट नहीं करेंगे इनटू कंट्रोल ग्रुप. अच्छा, आफ्टर कवरिंग इट विद ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स we will fix it with the paper clips और हम इसको प्लेस कर देंगे into sunlight, right. अच्छा, 6 to 8 hours, 12 hours it will carry out photosynthesis. Okay, after 8 hours we will again pluck this leaf which was covered with the black paper strips. We will remove the strips और हम इस लीफ के साथ क्या करेंगे, और इस लीफ का we will again perform the starch test जैसे कि we have discussed here. We will boil that leaf into water, then into ethanol, and then again into water, and then we will add iodine in the end. If it turns blue black, it means that plant has carried photosynthesis, and if it stays brown, का मतलब है plant has no starch, that's why it is brown. अच्छा, अब हम यहाँ पे रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं.
जैसे ये हमारे पास ब्लैक पार्ट है तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगी, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, इस पार्ट के ऊपर नो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर जो है आयोडीन का कलर क्या होगा? यस सिमाब, यू कैन टेक्स्ट मी योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इन द एंड। मिस, इज इट नेसेसरी कि हम स्टार्च टेस्ट में इथेनॉल यूज करें, उसके अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं? Mic and text me because mic is not loud. Yes, I've heard your question and I'm going to answer. एथेनॉल हम बेटा इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं, अदर देन एथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्वेंट, ठीक है, विच डिजॉल्व्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिजॉल्व होते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हम एथेनॉल की जगह प्रोपानॉल भी यूज कर सकते हैं, या हम जो है कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप या तो इसमें मुझे टेक्स्ट कर दें, देन आई विल आंसर इन द एंड। यहाँ में देख लिया, इसमें दिस पार्ट विच इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, यहाँ पर आयोडीन जो है इट विल स्टे ब्राउन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर क्या, इट विल स्टे ब्राउन बिकॉज यहाँ पर सनलाइट नहीं थी, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। हुआ तो not synthesized glucose, they have not synthesized starch from the glucose, so iodine will stay brown at this place. अच्छा, दूसरी प्लेस आप देखें, दिस ग्रीन वन के ऊपर क्या होगा, प्लांट वॉज प्रोवाइडेड विद द सनलाइट, या कंट्रोल ग्रुप भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, और इफ इट्स प्रोवाइडेड विद द सनलाइट तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा एंड iodine will turn blue black. Blue black at this point where sunlight was provided. ओके, इसी तरह हमने दूसरा सेटअप जो है, अगेन स्टार्च टेस्ट हम करेंगे। अच्छा, सेकंड सेटअप जो है, दिस इज फॉर द फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम बेल जार लेते हैं, दिस इज द बेल जार। अच्छा, बेल जार में वी हैव टेकन दिस पॉटेड प्लांट, और पॉटेड प्लांट को भी हमने फर्स्ट डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका लगा के, तो हमें इसको सनलाइट में रखना है सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ हमने कंट्रोल ग्रुप को भी एज इट इज ही ट्रीट करना है। डिस्चार्ज करना है हमने, डिस्चार्ज करने के बाद हमने क्या करना है, स्मॉल पॉटेड प्लांट लेंगे, वी विल प्लेस इट इनटू द बेल जार, एंड बेल जार इज ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब है कि बेल जार में से प्लांट को सनलाइट मिल रही है, इट इज गेटिंग सनलाइट थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट बेल जार। सनलाइट हमने प्रोवाइड कर दी है। as this is for the carbon dioxide, so we will omit only one factor which is the carbon dioxide. अच्छा, इसमें जो है आप देखें कि we will place potassium hydroxide, we have discussed it in the start। potassium hydroxide हम यूज करेंगे for absorbing carbon dioxide। inside आप देखें we have placed here a petri dish, right, जिसमें हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। अच्छा, ऊपर आप देखें एट द माउथ ऑफ द bell jar we have added soda lime. Soda lime is mixture of calcium hydroxide and sodium hydroxide, right? Soda lime is mixture of calcium hydroxide प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, और सोडा लाइम भी यूज कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द बिगिनिंग। इन तीनों का पर्पस क्या है, ऑल दीज थ्री विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेंगे तो इट मीन्स के हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड ओमिट हो जाएगी। Why we have placed it inside and why we have placed it at the mouth of the bell jar, reason is कि जो atmospheric carbon dioxide है it will be absorbed by the soda lime,
remaining. If some carbon dioxide is present into the bell jar, as gases are also present into the soil, there is soil into this pot, तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय this potassium hydroxide, or plants are carrying out photosynthesis, right? Yeah, plants are carrying out respiration में if carbon dioxide is being released into the jar तो वो भी absorb हो जाएगी by this potassium hydroxide. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को emit करना है, absorb करवाना है by uh, this soda lime and potassium hydroxide outside भी, और if it's present inside the jar तो वो भी हम क्या करेंगे, absorb करवा लेंगे. It is covered by the polythene bag. Again, polythene bag से cover करने का भी यही purpose है कि if carbon dioxide is present into the pot that is taken by this, और अच्छा पॉलीथीन से जो हम इसको कवर करेंगे, एक तो टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड जो है polythene is not as such required here because this is not being done for the transpiration. ठीक है, अगर हम पॉलीथीन से कवर नहीं भी करते तो देन इट्स ऑल्सो कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, वी विल अगेन सेटअप इन द सेम वे, और यहाँ पर इन पेट्री डिश वेयर वी एडेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वी विल ऐड वाटर, या आप इसको एम्प्टी भी प्लेस कर सकते हैं, वाटर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एंड एट द माउथ ऑफ द जार वेयर वी एडेड सोडा लाइम टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर आप इसको एम्प्टी भी प्लेस कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज द पेबल्स. ओके, अच्छा अब हम इस सेटअप को प्लेस करेंगे इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर 6 to 12 आवर्स. इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में अगेन इट विल मेक ग्लूकोज व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. और अब हम क्या करेंगे, इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे दोनों का. वी विल टेक लीव फ्रॉम दिस कंट्रोल सेटअप एंड वी विल टेक लीव फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब स्टार्ट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था. अगेन क्विकली आई एम गोइंग टू डिस्कस इन 1 to 2 minutes. We will pluck the leaf and we will boil it leaf into the boiling water, right, as some of the students have joined now. So I'm quickly going to revise how we are going to perform the starch test. Achha, we are going to pluck the leaf from this experimental setup and we are going to pluck a leaf from this control setup, और दोनों को हम as it is treat करेंगे, हम दोनों का start test perform करेंगे. We will boil this leaf into the boiling water, and purpose of boiling it into the boiling water is to make the cell membrane permeable. डिटेल में मैं आपको रीजन बता देती हूँ. as we've studied, cell membrane is made up of lipid bilayer, और लिपिड को जब हम बॉईल करते हैं हाई टेम्परेचर तो वो मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज destroyed and it becomes permeable to everything. हमें Miss, इसमें आयरन ऐड करना है. माइक इज नॉट अलाउड प्लीज, यू कैन कंटिन्यू. Miss Misbah, यस प्लीज, उम्मे Miss, हबीबा प्लीज. जब ये बॉयल जब हम बॉइलिंग वाटर में डाल रहे हैं तो can't you put it like directly? Miss, can't you put the leaf directly into the water? Yes, we can put leaf directly into the water. We can put leaf directly into the water. Okay. Okay, we will boil it into the water. This will make the cell membrane permeable, right? And the second, again, we will boil it into, after 10 minutes, we will boil it into the ethanol. Purpose of boiling it into the ethanol is that it will dissolve with chlorophyll, as ethanol is organic and chlorophyll is also organic. So after 10 minutes, the color of the ethanol will also change from white to green, because it will absorb the chlorophyll and chlorophyll is of green color. ठीक. अच्छा, then we will take this leaf and again boil it into the water. Why we are boiling it into the water again? The reason is
that it makes the leaf more permeable to iodine, or to make the leaf more permeable to iodine हम इसको again boil करते हैं into water. It's very simple. आप देखें स्टार टेस्ट में पहले हमने इसको boil किया into water for 10 minutes, then we have boiled it into the ethanol, right? Again we have boiled it into the water, and in the end we will add iodine onto the leaf. Precautionary measures मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. अच्छा, we will use water bath for boiling it into the ethanol, and we will put off the flame. Reason is as it is the combustible. तो हमने ये दो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और सेफ्टी मेजर्स लेने हैं. सेफ्टी मेजर्स हम वायर गॉस भी यूज करते हैं फॉर होमोजेनियस मिक्सिंग. ओके, और इसमें यू कैन ऑल्सो वेयर गॉगल्स व्हाइल यू आर डीलिंग विद द flame. These are the safety measures. Whenever in paper 6, while designing an experiment, safety measure is written, तो आपने वो लाजमी मेंशन करना होता है safety measure, right? अच्छा, in the end we will add iodine if the color of the iodine changes from brown to blue black. Abiba, you are joining late and this is important for you, so I'm going to discuss here. These were some of the chemicals जो हम यूज करते हैं और इनका पर्पस क्या है. ठीक है, यहाँ पर हम आयोडीन यूज करते हैं. दिस इज फॉर टेस्टिंग स्टार्च एंड आयोडीन इज ऑफ ब्राउन कलर. इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक मींस दैट इट कंटेन्स स्टार्च, राइट? और बाकी भी हमने ये कुछ दिए हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन राइट डाउन व्हाट फॉर व्हाट पर्पस दीस केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट? अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास please answer in chat box which leaf will turn blue black. The one from experimental group will turn blue black, or the one from control group will turn blue black. Yes, which one will turn blue black? The one in experimental group will stay brown because no photosynthesis has taken place. Yes. Yes, Sima, from its control setup, leaf will turn blue black because it has carried out photosynthesis and it has synthesized glucose and it has synthesized starch. So that starch will react with the iodine and it will turn blue black. Okay, in an experimental group, it will stay brown. So this comparison will let us know that carbon dioxide is very important for photosynthesis. If carbon dioxide is missing, then no photosynthesis takes place. सेम में हम जल्दी से नेक्स्ट भी कर लेते हैं as we have to wind up this chapter today. Another important factor for photosynthesis is chlorophyll. There are some of the plants which are growing in soil which is deficient in magnesium, तो उनमें chlorophyll की deficiency हो जाती है. And there is deficiency of the chlorophyll into the plants. They have variegated leaves. As you can see here, variegated leaves have whitish areas over there. ठीक है, या हम स्पॉट्स भी कह सकते हैं. स्पॉट्स भी हो सकते हैं, व्हाइटिश एरिया भी हो सकता है, विच हैज सम पार्ट ग्रीन एंड सम पार्ट हैज ब्राउनिश और येलोइश पार्ट. येलोइश होता है मोस्टली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द chlorophyll, right? अच्छा, those plants which are growing in the soil which is deficient in magnesium, we will pluck off their variegated leaf. Variegated leaf will have yellow area deficient in chlorophyll and green area which will contain chlorophyll. Okay, Duranta is one of the example. उसका हम लीफ प्लक करेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, लीफ का स्टार्च टेस्ट करेंगे एज इट इज. अच्छा, इससे पहले हमें हमेशा प्लांट को डी स्टार्च करना है ताकि उसमें जो यूज्ड स्टार्च है दैट शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट. स्टोर्ड स्टार्च शुड बी यूज्ड बाय द प्लांट, और बाद में हमने इसको सनलाइट में प्लेस करना है सो दैट इट शुड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अगेन हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, और स्टार्च टेस्ट में यस बेटा टेल मी द रिजल्ट्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स. इसी लीफ के ऊपर what will be the color of iodine on yellow area and what will be the color of iodine on green area. Yellow area does not have chloroplast and green area contains chloroplast. So the results are also written in this. Green area iodine will turn
blue black because of the starch presence, and in this yellow area it will turn brown. Okay, ये results हैं.